नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। जिन लोगों ने भी पार्ट 4 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 4 देख लेना। कारण যদি চোৱা নাই একো বুজি নাপাবা আজি, तो जाके देख लेना पार्ट 4 तक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए बिना कोई डिले शुरू करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था ना कुछ क्या हुआ था। পটল বৰুৱাক মাৰি পেলাইছিলে, ঠিক আছে। কোনে মাৰি পেলাইছিলে? মানুহসকলে মাৰি পেলাইছিলে। ফৰ্ট বনাইছিলে জয়পুৰক। কোনে কৈছিলে বনাবলৈ? চন্দ্ৰকান্ত সিংহই কৈছিলে। তো মানুহসকলৰো মনত আছে যে বদলাটো ল'ব লাগে। ই বৰ চালবনিব আহিছে, ঠিক আছে। तो चंद्रकांत सिंह तो মানে চন্দ্ৰকান্ত সিংহটো ভাগ গিয়া था, ঠিক আছে। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ভাগ গিয়া था, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ পলাই গৈছিলে। তাৰপিছত মানুহসকলে মাতিছে, আহা না আহা না, তোমাক আকৌ ৰজা বনাম, আহা না ৰজা বনাম। মনত বেলেগ আছিলে বাৰু। আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এফালে জানিছিলে, না 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 মই নাযাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁ, মই আহিম, লাহেকে আহিম আৰু ৰ'ব ৰ'ব। তো চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আহিব। মই তেওঁ জানিছিলে যে যদি তেওঁ আহি গ'ল অসমলৈ নাবাচে আৰু। কাৰণ তেওঁ যি কাম কৰিছে, যদি পটল বৰুৱাক মাৰি পেলালে তেতিয়া অৰ্ডাৰটো চন্দ্ৰকান্ত সিংহই দিছিলে ফৰ্ট বনাবলৈ। তাৰ কি অৱস্থা হ'ব সি জানিছিলে। তো তেতিয়া মানুহসকলে মাতিছে, আহা আহা, তোমাক আকৌ ৰজা পাতিম, আহা না। তেতিয়া চন্দ্ৰকান্ত না 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 নাহো নাহো নাহো, আৰে নাহো, আহিম আৰু লাহেকে আহিম আৰু কিন্তু সিও আহিব ৰেডি নাছিলে, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, বাৰ্মিজ ইনষ্টল যোগেশ্বৰ সিংহ এজ কিং ইন 1821। তাৰপিছত কি হ'ল, মানুহসকলে কাক পাতি দিলে? নতুন ৰজা যোগেশ্বৰ সিংহক নতুন ৰজা পাতি দিলে। কেতিয়া পাতিলে? 1821 পাতিলে। মনত ৰাখিবা কেতিয়া পাতিলে, 1821 পাতিলে। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, যোগেশ্বৰ সিংহ ৰুল্ড এজ এ পাপেট while বাৰ্মিজ হেল্ড পাৱাৰ। অফকোৰ্স গোটেই पावर, গোটেই কাম কাজ কোনে চাই আছে? सब कुछ कौन देख रहा है? बर्मिज देख रहा है। যোগেশ্বৰ সিংহক নাম কা ৰাজা বনা দিয়া, যোগেশ্বৰ সিংহ নামৰ ৰজা বনাই দিলে। এনে আৰু যা তই থাক আৰু মানে বহি থাক আৰু, তই ৰজা আছ, কিন্তু কাম গোটেইখিনি কোনে কৰি আছিলে? মানুহসকলে কৰি আছে। बर्मिज सारा काम कर रहे थे, बस उसको नाम का राजा बना के छोड़ दिया, ठीक है। যোগেশ্বৰ সিংহ वाज नोन एज माने पटा रजा। অফকোৰ্স মান लोगों ने बनाया था, ঠিক আছে। মানুহসকলে বনাইছিলে, তো মানে পটা ৰজাহে ক'ব। নিজেতো বনি যোৱা নাই, বা যোনটো আহোম কথা যোনটো চলি আছিলে তেনেকাতো একো বনি যোৱা নাই। জাষ্ট কোনোবাই বনাই দিলে, বনি গ'ল। তো সেইকাৰণে তাক কি নাম দি মাতিলে? মানে পটা ৰজা। তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, হু ইজ নন এজ মানে পটা ৰজা, তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। তো ইট ৱাজ যোগেশ্বৰ সিংহ, ঠিক আছে। বাৰ্মিজ অকুপাইড গুৱাহাটী এণ্ড ডিমাণ্ডেড ইংলিছ ৰিটাৰ্ণ ডিপ'জড ৰুলাৰ্ছ। তাৰপিছত কি হ'ল যে বাৰ্মিছে কি কৰিলে? গুৱাহাটীটো গোটেই কণ্ট্ৰলত লৈ ল'লে। তাৰপিছত কি হ'ল, সিহঁতে মানে ক'লে, ইংৰাজসকলক ক'লে যে যিমান ৰজা এফালে আপোনালোকৰ তাত পলাই আছে তাক পঠাই দিয়ক, আমি সিহঁতক চাম অলপ ভালকে, ঠিক আছে। उनको वापस से भेजो। बर्मिज ने इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश को बोलते हैं, ब्रिटिश को बोलते हैं कि जो भी राजा आपके पास भाग के गया है, जी মানুহে, जी ৰজাসকলে আপোনালোকৰ ওচৰত পলাই গৈছে, গোটেইখিনি ইয়াত পঠাওক, আমি চাই ল'ম, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইংলিছে কিন্তু দিয়া নাছিলে, ঠিক আছে। ইংলিছে ক'লে নাই, আমি উই কান্ট সেন্ড দেম, দে আৰ হিয়াৰ, উই উইল লুক আফটাৰ দেম। তো আমি এতিয়া পঠাব নোৱাৰো, ঠিক আছে। ইংলিছসকলে ক'লে বাৰ্মিছক যে हम नहीं भेज सकते, আমি সিহঁতক পঠাব নোৱাৰো, ठीक है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया। और इससे क्या होता है कि इंग्लिश और बर्मिस का रिलेशन खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? बर्मिस लोग बुला रहे थे, মানুহসকলে মাতি আছিলে, মানুহসকলে ইংৰাজসকলক কৈছিলে যে যিমান ৰজা অসমৰ যি পলাই গৈছে সিহঁতক পঠাই দিয়ক, কিন্তু ইংলিছসকলে, ব্ৰিটিছসকলে দিবলৈ সিহঁতৰ মন নাছিলে। তো সেইকাৰণে দুটাৰ মাজত ৰিলেশ্যন কি হ'ল? বেয়া হ'ব আৰম্ভ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এই মনত ৰাখিবা এই পইণ্টটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, চন্দ্ৰকান্ত এণ্ড পুৰন্দৰ সিংহ আপিল টু দ্য ইংলিছ বাট ৱেৰ ৰিফিউজড। তো তাৰপিছত কি হ'ল, এফালে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহই ইংৰাজসকলক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, বলক আমাক হেল্প কৰক, সিহঁতক মানে আকৌ আমাক কি লাগে? অসম আমাক ঘূৰি আমাৰ আহোম ৰাজটো আকৌ লাগে, আকৌ আহোম रूल स्टार्ट होने लगे, फिर से आहोम रूल शुरू होना चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं बार बार ब्रिटिश को कि हमारा हेल्प कीजिए, उन्हें हटाना है, उनको उनका आसाम नहीं है, वो हमारा आसाम है, हम रूल करेंगे, प्लीज हमें हेल्प कीजिए, आप कुछ आर्मी दीजिए, आप हमारे साथ चलिए, जैसे आपने पहले भी हमारा हेल्प किया, इस बार भी कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट কৰিলে বাট ইংলিছে হেল্প নকৰিলে। वाई? बिकॉज इंटरनल मेटर्सत সিহঁতৰ এতিয়া সোমাবলৈ একো ইচ্ছা নাছিলে। পিছত সোমালে, কেনেকৈ সোমালে আপুনি গম পাব, ঠিক আছে। थोड़ा सा सस्पेंस में रहो। अभी बस इतना याद रखो कि चंद्रकांत सिंह पुरंदर सिंह ने बार बार इंग्लिश को हेल्प के लिए बोला कि आप मुझे हेल्प करो, कि मतलब उनको मतलब क्या करना है, वापिस से मतलब हटा देना है, बर्मिस को हटा देना है, वापिस से हम राज करेंगे। बट इंग्लिश लोगों ने उनका हेल्प को डिनाई कर दिया। ऊपर से इंग्लिश ने ये भी बोला, तुम लोग चुप रहो, एक तो बर्मिस लोग तुम लोग को बुला रहे हैं, মানুহসকলে তহঁতক মানে মোক কৈছে তহঁতক পঠাই দিলো, পঠাও নেকি? মনে মনে থাক, একো হেল্প নকৰো তোৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হৈছে, फिर क्या होता है, दे हायर्ड मर्सनरीज फ्रॉम बंगाल टू फाइट द बर्मिस। अब क्या होता है कि इन लोगों को तो लड़ना तो था ही, ठीक है।
चंद्रकांता सिन्हा वाज डिटरमाइंड कि लड़ना तो है ही, बर्मिस को हटाना है ही। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ मर्सिनरीज हायर किया। मर्सिनरीज वो लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं आप पैसा दोगे तो आपके लिए लड़ रहेगा। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसे पैसा दोगे, मेरे लिए लड़ लो, उसके फाइट कर लो, आपको लास्ट में पता चला कि उसने उससे ज्यादा पैसा देके रखा है, तो वो फिर आप पे ही हमला कर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उसको रिप्रेजेंट करके क्या करेगा, लड़ाई करेगा, समझ गया। मान लीजिए ये मर्सिनरीज वैसा ही होता है, जिसको जो आप पैसे पे हायर करता है वो आपको रिप्रेजेंट करके लड़ाई करता है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चंद्रकांता सिन्हा ने भी क्या किया था, उन लोगों ने कुछ बंगाल से मर्सिनरीज वगैरह हायर किया था, किससे लड़ाई करने के लिए, बर्मी से लड़ाई करने के लिए, ठीक है। चंद्रकांता सिन्हा वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ महागढ़। चंद्रकांता सिन्हा ने कोशिश किया, और ये जो जगह हुआ बैटल ऑफ महागढ़, यहाँ पे लड़ाई होता है चंद्रकांता सिन्हा और बर्मिस का बीच में। ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है, बट जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उन दोनों का बीच में झगड़ा हुआ, चंद्रकांता सिन्हा और बर्मिस का बीच में। फिर से ऑफ कोर्स चंद्रकांता सिन्हा हार गया, बर्मिस जीत गया। द बैटल ऑफ महागढ़ वाज द लास्ट अटेम्प्ट टू रिवाइव असम इंडिपेंडेंस। ये एक लास्ट कोशिश था, एक लास्ट अटेम्प्ट किया था चंद्रकांता सिन्हा ने कि शायद बर्मिस को हटा के वापिस से वो पुराना वाला असम, जिसपे 600 साल हम लोग रूल किया करते थे, वैसा वाला राज, नाम का नहीं इस बार काम का, सब कुछ एक सपना लेके जो लड़ा था सब कुछ खत्म हो गया, बट एटलिस्ट लड़ा था। उसके लिए तो आपको ताली देना चाहिए इसको, उसके तार कारण अपना एप्रिशिएट কৰিব লাগে, ठीक है। चंद्रकांता लॉस्ट अनदर बैटल एट हदीरा चौकी। अब क्या होता है, चंद्रकांता सिन्हा और एक बैटल लड़ते हैं, ठीक है। कहाँ पे लड़ते हैं, हदीरा चौकी में लड़ते हैं। महागढ़ में कोशिश किया था बट वहां तो हार गए थे, चलो उनका मन में और एक था, और एक बार कोशिश कर लेते चलो, कि एक बार तो हार गया, और एक बार अगर क्या ही हो जाता है, हार जाने से भी क्या ही होगा, बट कोशिश तो करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। उसने खुद को समझाया, चलो इस बार डिमोटिवेट नहीं होना, इस बार अच्छा से पूरा कोशिश करते हैं। हदीरा चौकी में कोशिश किया बट वहां भी चंद्रकांता सिन्हा हार गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, द अराइवल ऑफ मिंगी महा बंदुला स्ट्रेंथन बर्मिस कंट्रोल ओवर असम। अब क्या होता है, जो मिंगी महा बंदुला था, जो बर्मा से आया था, तो वो क्या होता है, उसका आने के बाद बर्मिस कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया असम पे, ठीक है। उनका आने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था बर्मिस कंट्रोल। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मानोरडिन 1821 टू 1825 एडी। अब क्या, जब देखिए अब तो कंप्लीटली कंट्रोल मान लोगों ने कर ही लिया, जोगेश्वर सिंह नाम का राजा है, ठीक है। बट असल में अब सब सारा कंट्रोल किसका हाथ में है, बर्मिस मान के हाथ में। गोटे कंट्रोल कोने কৰি আছে, मानসকলে কৰি আছে, बर्मिসকলে কৰি আছে, ठीक है। अब क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम 1821 टू 1825 इज नोन एज मानोरडिन इन असम हिस्ट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1821 से 1825 जो होता है असम का फेज, इसको क्या कहा जाता है, मानोरडिन बोल के बोला जाता है। मानोरडिन क्यों, बर्मिस लोगों ने रूल किया था, नाम का राजा वो सब तो ऐसे ही था, सब रूल कौन कर रहा था, बर्मिस ही कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम द बर्मिस अनलीज्ड अ रेन ऑफ टेरर इन असम। अब क्या होता है, बर्मिस इस टाइम पे क्या करते हैं ना, पूरा रेन ऑफ टेरर, मतलब समझ गए होंगे, नाम से ही डरावना है, तो असम में बहुत ही ज्यादा डरावना सिचुएशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। অসমত মানে বহুত ভয়াবহ, মানে ইমান ভয়াবহ যে তোমালোক ভাবিব নোৱাৰা, বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে, মানে অসমীয়া মানুহক বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে মানুহসকলে, গম পাইছা। ইমান ভয়াবহ সিচুৱেশ্যন, মানে আজিলৈকে তোমালোক চাকে আফটাৰ হিটলাৰ, মানে তেনেকা মই ক'ব পাৰোঁ যে এনেকা নাই যে হোৱা নাই, হিটলাৰ পাছতো বহুত জেগাত হৈছে তেনেকা, বাট অসমতো হ'ল। আৰু অসমত কোনে কৰিছিলে, মানুহসকলে কৰিছিলে, এই ৰেন অফ টেৰৰ, ঠিক আছে। এই ৰেন অফ টেৰৰটো তোমাৰ খুব পপুলাৰ ৱৰ্ড হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো বাৰ্মিছসকলে অসমত কৰিছিলে, ঠিক আছে। যেনেকে তেওঁ গোটেই অসমটো কণ্ট্ৰলত লৈ ল'লে। চন্দ্ৰকান্ত সিংহই চেষ্টা কৰিছিলে লাষ্ট মহাগড়, তাৰপিছত হাদিৰা চকী, বাট ফেইল হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত কি হ'ল, গোটেই কণ্ট্ৰল লোৱাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে, মানুহসকলে চোৱা আমাৰ লগত কি কৰিলে, দে প্লাণ্ডাৰ্ড বাৰ্ণ ভিলেজেছ এণ্ড কমিটেড টেৰিবল এট্ৰচিটিজ। তেওঁ কি কৰিলে, গোটেই লুটপাট কৰিলে, লুটিলে, মানে আমাৰ গাঁওবিলাকক জ্বলাই দিলে, এনেকে তোমালোকে অলপ চিনটো চাব পাৰিবা, বাট জাষ্ট এ ডিপিকশ্যন, অ'কে। মানে এইটো জাষ্ট এটা আইডিয়াহে কৰি লোৱা হৈছে, তেনেকা হ'ল নে নহ'ল এইটো ক'বলৈ দিগদাৰ, বাট এনেকা কি হ'ল, গাঁওবিলাক আমাৰ জ্বলাই দিলে, ঠিক আছে। কোনে জ্বলালে, মানুহসকলে জ্বলালে। তাৰপিছত কি কৰিলে, কমিটেড টেৰিবল এট্ৰচিটি, মানে বহুত বহুত মানে বেলেগ টাইপৰ এট্ৰচিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে। বহুত হিষ্টৰিয়ানে বহুত কথা লিখি গৈছে, যে তেওঁ কেনেকে কেনেকে কৰিলে, লুটিলে, ডেকাইটি কৰিলে, মাৰিলে, পিটিলে, চব কৰিলে, মানে একো তুমি ক'ব নোৱাৰা যে একো নাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰা। ইনফেক্ট আমাৰ অমেন লগতো কিবা মানে বেয়া ব্যৱহাৰ বা কেনেকা হাৰাচমেণ্ট টাইপৰ চব কৰিছে, মানে বাৰ্মিছসকলে একো এৰি যোৱা নাই, মানে তেনেকা আমাৰ লগত কৰিলে। চোৱা, আমি যদি হিষ্ট্ৰীটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, টাইম মেচিন ডৰেমনৰ লৈ পিনি, যে যদি বদন চন্দ্ৰ নগ'লহেঁতেন বাৰ্মিছসকলৰ ওচৰত, আজি চাগে আমাৰ হিষ্ট্ৰী বেলেগ হ'লহেঁতেন, ৰাইট। যদি চন্দ্ৰকান্ত সিংহই বাৰ্মিছ মানে আকৌ যেতিয়া সিহঁতক ঘূৰি গৈছিল, যদি সেই ফৰ্টটো নবনালেহেঁতেন, হয়তো আমাৰ হিষ্ট্ৰী বেলেগ হ'লহেঁতেন, ৰাইট। তোমালোক নিজৰ নিজৰ অলপ আইডিয়াটো দিবা, কি হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কি হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, বাট মোৰ মতে চাগে নহ'লহেঁতেন। বাট চোৱা আমাৰ লগত কি কি কৰিলে, ঠিক আছে। এইবিলাক লিখি দিবা, মানুহসকলে কি কৰিলে, মানুহৰ দিনত কি কি হ'ল, এইবিলাক কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে, গোটেই লিখি দিবা, ঠিক আছে। মেনি পিপল বিকাম ফিজিটিভছ, ভগনীয়া ৱাণ্ডাৰিং ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ। এতিয়া কি হ'ল,
চোৱা যদি কোনোবাই তোমাৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰিব আহে, তুমি ধৰা ঘৰত একদম ধুনীয়াকৈ বহি আছা, তোমাৰ কোনোবাই পিটিব আহে তোমাক, ঠিক আছে, তুমি কি বহি থাকিবা নেকি, আহা মোক পিটা, তেনেকেতো নহ'ব ন, তুমিতো পলাবা। এইটো কি হ'ল, যেতিয়া মানুহসকলে আহিলে অসমত মানে গোটেই কণ্ট্ৰল কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ লগত যেতিয়া সিহঁতক ঘৰ জ্বলাই দিলে, লুটিলে, তো লাষ্টত মানে কি অসমীয়া মানুহৰ ওচৰত উপায় নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো তেওঁ কি কৰিলে, পলোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে। পলাব লাগিব ন, নিজৰ জীৱনতকৈ ডাঙৰ কি হয়, তো নিজৰ জীৱনটো বচাবলৈ তেওঁ এফালে পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ভগনীয়া বুলি লিখা আছে, মানে জেগাই জেগাই য'ত জেগা পায় আৰু তাতে থাকি দিলে আৰু তেনেকে জেগাই জেগাই ফুৰি থাকিলে আৰু, কিন্তু অসমত থাকিব নোৱাৰিলে। মানে চোৱা নিজৰ জেগাতে নিজে থাকিব নোৱাৰিলে, সেইটোৱে বাহিৰৰ মানুহৰ যদি তেনেকে কৰা হয় ন, সেইটো লাষ্টত গৈ তেনেকে হ'বগৈ, ঠিক আছে। দিছ পিৰিয়ড ইজ অলছ' কল্ড মান ভগনৰ দিন, বিকজ পিপল ফ্লেড টু এস্কেপ চাফাৰিং। এইটো কি হয়, এই পিৰিয়ডটো কি কোৱা হয়, মান ভাগনৰ দিন, মানে একদম লিখাই আছে ন, মানুহসকলৰ অহাৰ কাৰণেতো পলাইছিলে চবে, তো সেইকাৰণে এই ফেজটো কি কোৱা হয়, মান ভগৱানৰ দিন বুলি কোৱা হয়। যিহেতু মান আহিছিলে, মান কণ্ট্ৰল কৰিব ল'লে, মানুহ সেইকাৰণে পলাব ল'লে, এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া মানুহে পলাব ল'লে, সেইকাৰণে এই ফেজটো কি কোৱা হয়, মান ভগৱানৰ দিন, ঠিক আছে। some even fled to neighboring countries to seek safety, কিছুমান কি হ'ল আশে পাশে দেশ পলাব ল'লে, ঠিক আছে। তো উপায় নাই ন, যাবই লাগিব। তো नाइबरिंग कंट्री মানে আমি आस पड़ोस में सब भागना शुरू कर दिए, मतलब इधर इधर जो भी देश जहां भी मिलता था, कहीं तो रहना पड़ेगा, कहीं तो जिंदगी चलाना पड़ेगा, तो आसपास का देश में लोग भागना शुरू कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है, एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स सफर्ड ग्रेटली ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखिए অফক'ৰ্চ এগ্ৰিকালচাৰ কাম नहीं करेगा, এগ্ৰিকালচাৰ খেতি কেনেকৈ হ'ব, যদি মানুহে পলাই গ'ল, যদি মানুহে নাই অসমত, তেতিয়া খেতি কোনে কৰিব। তো কি হ'ল, খেতি কমিলে, আৰু যদি খেতি কমিলে তেতিয়া তুমি যদি খেতিয়ে নাই, তেতিয়া তুমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিবা জানো, তোমাৰ ওচৰত একোৱে নাই, তুমি মাটি লৈ যাবা নেকি, এইটো লোৱা, খুলি ল'ব তোমাৰ মাটি, সিহঁতৰ ওচৰতো মাটি সিহঁতৰ ওচৰতো আছে। তো যিহেতু খেতি পুৰা ধ্বংস হৈ গ'ল, এইবিলাক চিটুৱেশ্যন হ'ল, গাঁও জ্বলাই দিলে, কিবা কৰিলে, মানুহ পলাই গ'ল, তেতিয়া খেতি কৰিবলৈও কোনো নাই, আৰু যেতিয়া খেতি কৰিবলৈ কোনো নাই, তেতিয়া ট্ৰেড হ'ব নেকি, ট্ৰেড কেনেকৈ হৈছে, যি খেতি অসমত হয় এইবিলাক কাৰোবাক বিক্ৰী কৰে, কিবা কৰে, খেতিয়ে নাই, বিক্ৰী কি কৰিব, তো ট্ৰেডো ডিক্লাইন হৈ গ'ল। তাৰপিছত কমাৰ্চ, মানে পইচাও নাহিলে, सिंपल কথা, এটা লগত আনটো ৰিলেটেড হৈ আছে, বুজি পালা চাগে। मैं बस इतना आपको समझा देता हूँ, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने का मतलब क्या हुआ, अब लोग भाग गए, तो कौन करेगा खेती, खेती नहीं हुआ। अब खेती नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्रेड क्या करेंगे, फिर बिजनेस क्या चीज से करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस भी नहीं हुआ। अब बिजनेस नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा, बस वही, इसलिए यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स सफर्ड ग्रेटली ड्यूरिंग दिस टाइम, एग्रीकल्चर ट्रेड सब कुछ सफर किया, ठीक है, मानव दिन का टाइम पे। सम पीपल प्रिटेंडिंग टू बी बर्मिस कमिटेड इवन वर्स एट्रोसिटीज ऑन द आसामीज। चुआ এইটো কিমান বেয়া কথা কইলে, देखो कितना बुरा काम किया, कुछ लोग मतलब हमारे आसामीज लोग ही ठीक है, अपने आसामीज लोग पर एट्रोसिटी करना शुरू कर दिया। माने নিজকে কলে मैं बर्मिस, खुद को बोला मैं बर्मिस हूँ, ठीक है, और फिर आके हमारे ही आसामीज लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमारे अपने लोगों ने ही अपने लोगों को टॉर्चर किया। ऐसे बोलते हैं ना, अब तो एक गाना भी है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गिरोह में कहाँ गम था, तो दम था, सॉरी। तो यहाँ देख रहे हो, अपनों ने ही अपनों को लूटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम पीपल, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो असमीज लोगों ने क्या किया, कुछ असमीज लोगों ने क्या किया, अपने आप को बर्मिस बताकर, हाँ मैं तो बर्मिस हूँ, फिर जो कमजोर असमीज लोग थे उस पर एट्रोसिटी करना, पीटना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, बल्कि वो भी असमीज थे। अब सोचिए, एक असमीज दूसरा असमीज पे वो करना शुरू कर दिया, अपने लोग নিজৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে। কিন্তু ফাল্টু কথা হ'ল, মানে দেখিছা। সেইকাৰণে মানে কি ক'ম আৰু, সেইকাৰণে চান্স পালে ন বাৰ্মিছসকলে অসমত আহিবলৈ, নিজৰ মানুহৰ কাৰণে হ'ল এইবিলাক চব। কি ক'বা আৰু, নিজৰ মানুহে লাষ্টত ধোকা দিয়ে। এনেকৈ চিনেৰি চাব পাৰা, ঘৰবিলাক জ্বলালে, ঠিক আছে, ঘৰ গোটেইখিনি এনেকৈ চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে। জাষ্ট এটা ডেপিকশ্যন, অ'কে, পিকচাৰটোত মানে কমপ্লিটলি এনেকৈ হ'ল নে নহ'ল ক'ব পৰা নাই, বাট জাষ্ট মই এটা ডেপিক কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা বাৰ্মিছসকলে কৰিছিলে, ঠিক আছে। ইয়াত দেখিছা, ইয়াত এটা আমাৰ লগ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ঠিক আছে, তো তেনেকুৱা হৈছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, মানৰ দিন, ষ্টিল ইটছ নট অভাৰ। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন ইজ অফেন ব্লেম ফৰ দ্য বাৰ্মিছ ইনভেজন অফ আছাম। বহুত মানুহে কয় যে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ কাৰণে আজি মানুহসকল আহিলে। অফক'ৰ্চ বদন চন্দ্ৰটো প্ৰথমবাৰ কৰিছিলে, এইটো কথা কোৱাটো শুদ্ধই হয়, কিন্তু বহুতে আকৌ কয় হি ইনভাইটেড দ্য বাৰ্মিছ টু হেল্প ৰিজল্ভ ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ ইন আছাম। তো এইটো মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ, সিয়েতো মাতিছিলে ন, যে অসমত এনেকৈ হৈ আছে, পূৰ্ণানন্দই কিবা কিবি কৰি আছে, আমাৰ অসমৰ মানুহক এনেকৈ কৰি আছে, টৰ্চাৰ কৰি আছে, কিবা কৰি আছে, তাত কৈছিলে। তো সি আকৌ ৰংগিলিও তাক ক'লে ন বাৰ্মিছসকলক যে প্লিজ হেল্প কৰি দিয়ক বদন চন্দ্ৰক। তো সি বদন চন্দ্ৰই বৰগোটেই বাৰ্মিছ লৈ আহিলে, তেনেকৈ গোটেই আমাৰ প্ৰব্লেমটো সিয়ে কৈ পিনি গুচি গ'ল। যদি সি নকলহেঁতেন তেতিয়া কি মানুহসকল আহিলেহেঁতেন নেকি, নাহিলহেঁতেন। তো সেইকাৰণে ইয়াত লিখা আছে হি ইনভাইটেড দ্য বাৰ্মিছ টু হেল্প ৰিজল্ভ ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ ইন আছাম। সি নিজেহে মাতি আনিলে, প্ৰব্লেমটো নিজে মাতি আনিলে। সেইকাৰণে বহুত মানুহে বদন চন্দ্ৰকে ৰেছপনচিবল দিলে যে মানুহসকল আহিলে, আৰু মানুহসকল যদি নাহিলেহেঁতেন, ব্ৰিটিছসকল নাহিলেহেঁতেন, হ'ব, এতিয়া ছাছপেন্স এইটো নকৰোঁ। Some scholars argue that Purnananda Buragohai was also responsible due to his oppressive rule.
বহুত মানুহে কয়, বহুত স্কলাৰ, বহুত হিষ্টৰিয়ানে এইটো কয় যে পূৰ্ণানন্দও ৰেছপন্সিবল হয়, যিমান বদন চন্দ্ৰ ৰেছপন্সিবল হয় ইমান পূৰ্ণানন্দ ৰেছপন্সিবল হয়। তো কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে কয় বদন চন্দ্ৰ ৰেছপন্সিবল, নিজে গৈ পিনি আনিলে। কিছুমান ডিবেট হয়, কিছুমানে স্কলাৰে কয় যে পূৰ্ণানন্দ ৰেছপন্সিবল। তো দুটাৰ মাজতে এটা মানে কনফ্লিক্ট হৈ আছে, এটা ডিবেট হৈ আছে যে আচলত কোন। বাট ইহঁতৰ যোনটো লজিক হয়, বদন চন্দ্ৰ sought Burmese help to end বুঢ়াগোহাঁই's tyranny. Inviting an external power to interfere in internal matters is heavily criticized. তাৰপিছত চোৱা কি হ'ল, যিসকলেহে কয় যে পূৰ্ণানন্দক মানে পূৰ্ণানন্দৰ কাৰণে হৈছে, তেওঁ এইটো মানে তেওঁৰ ফালৰ পৰা এইটো লজিক দিয়ে, তেওঁৰ ফালৰ পৰা এইটো আৰ্গুমেণ্ট দিয়ে যে যদি পূৰ্ণানন্দই বদন চন্দ্ৰক হয়তো গুৱাহাটী পোষ্টৰ পৰা আঁতৰাই নিদিলেহেঁতেন, যদি তাক ভালকৈ ট্ৰিট কৰিলেহেঁতেন, যদি পূৰ্ণানন্দই নিজৰ পলিচিবিলাক অলপ ভাল ৰাখিলেহেঁতেন, একদম ষ্ট্ৰিক্ট নাথাকিলেহেঁতেন, ইমান মানে এটিটিউডত নাথাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো চব ঠিক থাকিলেহেঁতেন। বদন চন্দ্ৰৰ লগতো পূৰ্ণানন্দ বেয়া কৰিলে বুলি বদন চন্দ্ৰ গ'লগে। কিন্তু আচলতে তুমি চোৱা, এনেকা নাই যে পূৰ্ণানন্দই বদন চন্দ্ৰক চেষ্টা কৰা নাছিলে, আকৌতো পাতি দিছিলে ভালকে গুৱাহাটীৰ বৰফুকন, তাৰপিছতো আকৌ সি আৰম্ভ হৈ গ'ল নিজৰ কাম কৰা। দেখিছানে কামাখ্যা গোটেইখিনি লুটা আৰম্ভ কৰিলে। তো এইটো মই বিলিভ নকৰোঁ, তোমালোকে বিলিভ কৰা নকৰা, বাট এই হিষ্টৰিয়ানৰ পইণ্ট অফ ভিউটো মই বিলিভ নকৰোঁ। মই কমপ্লিটলি বদন চন্দ্ৰকে ৰেছপন্সিবল দিম যে এইবিলাক চব তেওঁৰ কাৰণে হৈছিলে। পূৰ্ণানন্দ ৱাজ নট, মানে মই ৰেছপন্সিবল নিদিওঁ, বিকজ পূৰ্ণানন্দই চেষ্টাটো কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো ইনভাইটিং এন এক্সটাৰ্নেল পাৱাৰ টু ইণ্টাৰফিয়াৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছ ইজ হেভিলি ক্ৰিটিচাইজ। তো এই বস্তুৱে বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে কিয় বদন চন্দ্ৰ গ'ল, নিজৰ ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম নিজে চল্ভ কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকৰ দুটা ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যদি তোমালোকৰ কাজিয়া হয়, তো তোমালোক নিজে চল্ভ কৰিব লাগিব, থাৰ্ড পাৰ্চনক কিয় মাতিব লাগে? তো তেতিয়াও মানে বহুত মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে বদন চন্দ্ৰক যে তই কিয় মাতিব লাগিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু অবজাৰ্ভ how some people in the guise of the Burmese played the role of opportunists in harassing their own people. In present times also, during calamities and other misfortune, there are some greedy and wicked people who engage in loot, plunder and other immoral activities. We should take note of such persons and try to instill good moral values in them. তো এতিয়া তাত এই বস্তুটো মানে তোমাৰ এটা পেৰাগ্ৰাফত লিখা আছে। তো ইয়াত এইটোৱে লিখা আছে, দেখিছা না, মই অলপ আগতে কৈছিলো যে কিছুমান আছামিজ মানুহে, কিছুমান অসমীয়া মানুহে নিজৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰিছিলে। নিজকে বাৰ্মিজ বুলি কৈ নিজৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰতে মানে অত্যাচাৰ এইবিলাক কৰিছিলে। তো এইবিলাক মানে কি কৰিছিলে, সিহঁতৰ নামত কি কৰিছিলে, লুট পাট চব কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এনেকা যি উইকেট মানুহ থাকে, সিহঁতক মানে মৰেল ভেলিউজ দি ভাল কৰিব লাগে, তোমালোকৰ বুকত লিখা আছে। বাট মই নাভাবোঁ যে সিহঁতক কিবা মৰেল ভেলিউজ দিলে সিহঁতে ভাল হ'ব পাৰে প্ৰথমবাৰ, ছেকেণ্ড টাইম, থাৰ্ড টাইম সিহঁতক মানে মৰেল ভেলিউজ দিবও লাগে যে এনেকৈ কৰাটো বেয়া হয়, কিবা বেয়া হয়। বাট যি থাৰ্ড টাইমতো ঠিক নহয়, কেতিয়াও ঠিক হ'ব নোৱাৰে আৰু মোৰ মতে নহয় দেই। তোমালোকৰ কি অপিনিয়ন মই নাজানো, কিন্তু মই নাভাবোঁ মানে এটা মানুহক তুমি কিমান মৰেল ভেলিউজ দিবা। বহুত ষ্টুডেণ্ট তেনেকাও থাকে, তাক বাৰে বাৰে কৈ থাকে টিচাৰটো নপঢ়ে, উল্টা পুল্টা কামত লাগি থাকে, সি কেতিয়াও ঠিক হয় জানো? তো তেনেকা হয়। বাট ঠিক আছে, তোমাৰ বুকো ঠিকে কৈছে, মোৰ মতেও হয় যে মানুহক সদায় মৰেল ভেলিউজ দি থাকে। এইবিলাক কামত যি থাকে ন, লোকক বেয়া কৰা, যাৰ উইকেট নেচাৰ এটা থাকে, তাক ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। সেইটো বুক কৈছে, ময়ো কৈছোঁ, ঠিক আছে। তোমাৰ লগৰ যদি তেনেকা আছে তুমি চেষ্টা কৰা, বাট 3-4 4বাৰতকৈ বেছি চেষ্টা নকৰিবা। তাৰপিছত কি হয়, ৰিজাল্টছ অফ দ্য বাৰ্মিজ ইনভেজন অফ আসাম। এতিয়া আমি ৰিজাল্ট পঢ়িম, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करने, मतलब लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ बर्मिज इन्वेजन। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, और यहाँ से मार्क्स भी आप इजिली सिक्योर कर सकते हो, बिकॉज पॉइंट वाइज लिख दो, मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सेवा इज आस्किंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मत छोड़ना। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले वाला जमाना जैसा, वो आदिम शाह का जमाना जैसा क्वेश्चन आएगा कि हाँ ये है, इन व्हिच ईयर बर्मिज इन्वेजन टुक प्लेस, ऐसा आएगा, तो वो आप आशा करो ही मत, ठीक है। अब क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न का आने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो डोंट इग्नोर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड जो भी मैं एमसीक्यू देता हूँ उसको करते जाना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फेस होगा। वीडियो को सुनना, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, एंड फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ बर्मिज इन्वेजन ऑफ असम, मैं बता देता हूँ। पहला, द बर्मिज इन्वेजन ऑफ असम पेव्ड द वे फॉर द डाउनफॉल ऑफ द 600 years ओल्ड आहूम रूल। अब जो 600 साल आहूम रूल चल रहा था, ऑफकोर्स जैसे ही बदन चंद्र बरफुकन जाते हैं, बर्मिज आते हैं, ठीक है, फिर चंद्रकांता सिंह का जो फोर्ट बनाता है, फिर फाइनली जो बर्मिज आया, चंद्रकांता सिंह का भाग गया, जोगेश्वर सिंह को नाम का राजा बना दिया, सब कंट्रोल वो ले लिया, आहूम पूरा असम में लूटपाट, फिर गांव को जलाना, ये सब काम करना शुरू कर दिया। तो आप बोल सकते हो 600 साल आहूम रूल फाइनली किसने खत्म कर दिया, बर्मिज इन्वेजन ने खत्म कर दिया। ये तो फर्स्ट रिजल्ट, ये तो इजी है, याद कर लोगे। दो टेम्पोरली द आहूम किंग्स और स्वर्गदेव केम अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ द बर्मिज किंग। अब क्या होता है, देखो जोगेश्वर सिंह का ही बात ले लो, तो आहूम जो भी ट्यूटिलेज होता है, ट्यूटिलेज मतलब क्या, किसी के कंट्रोल में आ जाना, किसी अथॉरिटी के अंदर में आ जाना, ठीक है। अब अगर आपका खुद का अथॉरिटी नहीं रहता, किंग का मतलब क्या होता है, खुद राज करता है, राइट। लेकिन अब जब किंग ही किसी के अथॉरिटी के अंदर आ जाए, किंग किसका अथॉरिटी के अंदर आ गया,
बर्मिस की ऑथोरिटी के अंदर आ गया। आहूम राजा का कोई पावर रहा ही नहीं, सब कोई टेम्परली हुआ, बट क्या हो गया, किसी के आहूम राज के अंदर में आ गया। जोगेश्वर सिंह का देखा था ना किस तरह वो उसको नाम का राजा बना दिया, और सब अथॉरिटी कौन कंट्रोल कर रहा था, बर्मिस कर रहा था। ये पॉइंट नंबर 2 याद हो गया। 3, द आहूम किंग्स हैड बिकम नॉमिनल रूलर्स। ऑफ कोर्स जोगेश्वर सिंह नॉमिनल रूलर बन गया, नाम का। सब कंट्रोल कौन कर रहा था, बर्मिस ही कर रहा था। चंद्रकांत सिंह को भी नाम का राजा उसको बना दिया, जोगेश्वर को भी नाम का राजा बना दिया। रूल सब कौन कर रहा था, बर्मिस कर रहा था, ठीक है। द मिलिट्री स्ट्रेंथ हैड वीकेंड कोजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, कमते जाता है, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स कम गया, क्योंकि लोग तो भाग ही गए, आधा लोग तो ऑलरेडी बाहर भाग गया था, ठीक है। और बाकी जो मिलिट्री था वो भी कमजोर होना शुरू हो गया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो गया था पूरा आहूम में, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर चूजिंग अ न्यू रूलर फादर वीकेंड द आहूम मोनार्की। अब आहूम मोनार्की में और एक प्रॉब्लम हो रहा था, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तुम राजा बनोगे, तुम राजा बनोगे, ठीक है, ये हो रहा था, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो वो उसमें एक कंपटीशन चल रहा है, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। उस चक्कर में कौन लग गया, तो नाम का और सारा ऑथोरिटी वही लोग चला रहे, नाम का एक राजा बैठा दिया। तो राजा बनते रहो, अचार डालो फिर राजा बनने का, तुम्हारा झगड़ा करते रहो, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, होता है ना। आप दो लोग झगड़ा कर रहे हो, मैं मैगी खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा, तीसरा आगे खा लेता है, ठीक है। इनके साथ भी ऐसा हुआ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। फाइनली सारा ऑथोरिटी कौन ले गया, ब्रिटिश ले गया। चंद्रकांत सिंह फ्लेड टू ब्रिटिश टेरिटरीज इन बंगाल फॉर सेफ्टी। बताया था मैंने, चंद्रकांत सिंह कहाँ भाग गया, बंगाल, ब्रिटिश के पास, वहां पे सेफ्टी के लिए। अरे अरे ये तो लोग, अगर मैं बाहर रहूंगा, बर्मिस लोग मुझे बुला लेंगे, और फिर क्या हाल होगा वो तो आप लोग जानते हो। पटल बोरबुरुआ का जो हाल हुआ, उसका भी वैसा ही हाल होगा। इसलिए चंद्रकांत सिंह बंगाल के अंदर एकदम ऐसे डरे डरे रहने लगे, ठीक है। वहां पे ही सेफ्टी वगैरह उनको मिला। पुरंदर सिंह ऑल्सो टू रिफ्यूजी इन ब्रिटिश टेरिटरीज। अब क्या की है, पुरंदर सिंह भी क्या होता है, वो ब्रिटिश टेरिटरीज में रहना शुरू करे। पहले ही चला गया था ना वो, तो आपको याद होगा, ऋषिनाथ पुरंदर सिंह, वो लोग ब्रिटिश के अंदर में ही, सब ब्रिटिश के अंदर ही चले गए। पता नहीं ब्रिटिश सबको देखभाल कर रहा था, ठीक है। आओ आओ बच्चों आओ, सबका देखभाल कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था। द नोबल्स एंड ऑफिशियल्स फेल टू प्रोटेक्ट द कंट्री। अब क्या होता है, जो नोबल्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होता है, जो ऑफिसर्स होता है, जो आहूम एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था, नोबल्स ऑफिशियल्स वगैरह, वो लोग भी अब अपना देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, असम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, फेल हो गए, ठीक है। द बर्मिस इन्वेजन हेस्टेंड द कोलैप्स ऑफ द आहूम रूल इन असम। अब जो बर्मिस इन्वेजन आता है उसके बाद क्या हो गया, वही जो प्रोसेस हो गया वो बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। आहूम रूल द एंड हो गया, जैसे बर्मिस ने फाइनल इन्वेजन कब हुआ था, थर्ड वाला 1821, याद होगा, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 3 में ही आएगा ये सारा चीज, ठीक है। ये आपको लिख देना पड़ेगा, डोंट अवॉइड, बिकॉज क्या होता है, सेवा में स्टिल डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि आप बस पॉइंट लिख दोगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा तो डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा। 5 to 6 मार्क का आएगा तो थोड़ा आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसके अंदर आप ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, द बर्मिस इन्वेजन रूइंड द इकोनॉमी ऑफ असम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिक्लाइन एंड ट्रेडर्स शट डाउन देयर बिजनेस। अब क्या होता है, देखो बर्मिस जब मानोरडिन में हमने देखा था ना, गांव जला दिया, लूटपाट कर दिया, प्लंडर करना शुरू कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, सारा लूटपाट हो गया, बोले गांव जलाई दिले, किवा जलाई दिले, हे मैं कोने बिजनेस करिব, খুন পগলাই बिजनेस करिব, আহি बोले दुकान चलाइছো, दुकाने चलाई दिले, ठीक है। तो वो नहीं होगा, कौन पागल बिजनेस करने जाएगा उस टाइम में। अभी मान लीजिए आप जहां पे भी हो, वहां पे बोले कोई गुंडा है, गुंडा आके बार बार लूटपाट करके ले जाता है, जला देता है। अब क्या वहां पे दुकान चलाने जाओगे क्या, पागल हो, वैसा मत करना, ठीक है। मतलब सोचोगे भी तो मूर्ख लोग ही कोशिश करेंगे। तो असम में भी क्या हो रहा था, जो बर्मिस इन्वेजन था उससे इकोनॉमी जो है डाउन हो गया। क्यों इकोनॉमी डाउन हो गया, क्योंकि गांव जला रहे हैं। अब इकोनॉमी कब आप होता है, जब पूरा बिजनेस होते रहता है। आज इंडिया का इकोनॉमी कितना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब बिजनेस कर रहे हैं, इधर उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए असम में सब कुछ सब जलाना शुरू कर दिया, सब तो अपना घर में छुपा रहेंगे, बिजनेस होगा ही नहीं, बिजनेस नहीं होगा तो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे नहीं, तो फिर जीडीपी कहां से ग्रो होगा। तो असम में भी वही प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। क्या हो गया था, उनका जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली बर्बाद हो गया था। लोग बर्मिस लोग पूरा जला रहे थे गांव, लूटपाट, तो सब लोग, कुछ लोग तो भाग ही गए थे। अब लोग है ही नहीं तो बिजनेस कौन करेगा, अब बिजनेस, अब भूत तो आएंगे नहीं, ठीक है, भूत तो आएंगे नहीं करने कि जो लोग मरे उनका भूत आ गया, हाँ मैं कर दूंगा, मैं बचा लूंगा, ऐसे तो होगा नहीं, भूत से कौन बिजनेस करे, भूत कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया, बिजनेस नहीं चलना शुरू हो गया, लोग ही नहीं थे बिजनेस करने के लिए, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी डाउन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिक्लाइन, अब लोग है ही नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कौन करेगा, तो गुड्स डिक्लाइन होना ही है। फिर क्या होता है, ट्रेडर शट डाउन देयर बिजनेस, अब लोग है ही नहीं, तो जो भी है लूटपाट जला रहे, तो कुछ लोग अपना दुकान बंद करके भाग गए, चलो भाई जिंदगी है तो 1000 दुकान बना लेंगे, यहाँ कौन रहेगा, ठीक है। मेनी पीपल फ्लेड देयर होम्स इन फियर, कोजिंग विलेजेस टू बी अबंडन एंड कल्टीवेशन टू सफर। बहुत लोगों ने अपना क्या कर दिया, घर डर में छोड़ दिया, बिकॉज जला रहे थे ना, हो सकता है उन्हीं को जला दे, क्या गारंटी, बर्मिस तो एट्रोसिटी कर ही रहते, मार ही रहते लोगों को। तो इन्होंने अपना घर छोड़ के चला गया, और विलेज पूरा खाली हो गया, मतलब बोल सकते हो कब्रिस्तान जैसा हो गया सिचुएशन, ठीक है।
सम पीपल टू रिफ्यूजी इन नाइबरिंग हिल्स वैलीज और कंट्रीज। अब कुछ लोग, मैंने पहले भी बोला है कि आसपास का देश में या आसपास का पहाड़ में छुपने के लिए, मतलब वहां पे छिप गए, ठीक है। फिर क्या होता है, सोशल लाइफ इन असम वाज बैडली अफेक्टेड एंड मेनी प्लेसेस टर्न इनटू जंगल्स। तो क्या होता है, जो सोशल लाइफ होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। लोगों का सोशल लाइफ कब हो रहता है, जब सब एक साथ मिल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा वगैरह खेल रहे हो, कबड्डी वगैरह खेल रहे हो। अब तो लोग पबजी खेलते हो, वो अलग बात है, मिल के, ठीक है, कम्युनिटी बना के पबजी खेलते रहते हैं, फ्री फायर खेलते रहते हैं। बट उस समय क्या था, लोग एक साथ मिलते थे, जुलते थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरा का ओकेजन में, एक दूसरा का फैमिली फंक्शन में जाते, आना जाना होते रहता था। सोशल लाइफ बहुत अच्छा था। अब क्या हुआ, क्योंकि लोग गाँव जाना शुरू हो गए, आप सोशल लाइफ एंजॉय करेंगे या फिर अपना जीवन लाइफ बचाएंगे, राइट। तो लोग अपना भागना शुरू कर दिए, सोशल लाइफ पूरा खत्म हो गया, कोई किसी से मिलता जुलता था नहीं, सब अपना अपना घर में छुपे रहते थे या कोई पहाड़ में भाग गया। तो सोशल लाइफ असम का खत्म हो गया। मेनी प्लेसेस टर्न इनटू जंगल। अब क्या हो गया, जंगल बन गया सारा जगह, क्योंकि लोग थे ही नहीं ना। अब लोग रहते हैं तो काटते रहते हैं या फिर पूरा चीज को अच्छा से रखते हैं, सेटल रहते हैं। अब आपका घर है, अगर घास पेड़ पौधा ज्यादा उगना है तो आप काट देते हो ना उसे, तो उससे फिर से वापस अच्छा बन जाता है, एकदम साफ सुथरा बन जाता है। अब कोई होगा ही नहीं, तो प्लेन्स ट्रीज ये सब ग्रोज होना शुरू हो गया, जंगल जैसा बन गया, कोई था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, असम का जो जगह है वो कम्प्लीटली जंगल बन गया, कोई था ही नहीं काटने पीटने के लिए, एकदम अच्छा से देखभाल करने के लिए, तो वो जंगल बन गया, ठीक है। फिर क्या होता है, द बर्मिस ऑक्यूपेशन लेड टू द इंटरवेंशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ही बर्मिस आता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। कैसे आता है वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों इंग्लिश और बर्मिस एक दूसरे के साथ आमने सामने आए वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। द बर्मिस हैड ऑलरेडी टेकन अराकान, मणिपुर एंड कसार एंड एम टू कंट्रोल असम। अब क्या हुआ था, बर्मिस ने क्या क्या ले लिया था, अराकान, मणिपुर एंड कसार ऑलरेडी ले लिया था, ठीक है। अब उनका एम क्या था, पूरा असम पे कंट्रोल करने का, तो था ही, असम पे कंट्रोल कर ही लिया था। और उससे क्या होता, ब्रिटिश लोग डर रहा था, क्योंकि बंगाल एकदम सामने था। ब्रिटिश को डर था कि अगर ये असम तक पहुंच गया तो बंगाल तक पहुंचने भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश को लगा कि जब तक ये पहले आए हम चले जाए। तो ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, वो डिटेल्स में आपको कवर होगा, ठीक है। तो डरिएगा मत कि सर ने पाल मार दिया, ऐसा कुछ सर एक पाल मारा है, ठीक है। আগত হবই, তো সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ ৰাখি দিছো, সব এতিয়া কৈ দিম নেকি। फिर क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द बर्मिस बिकेम ए थ्रेट टू इंग्लिश पावर, लीडिंग टू द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार 1824 टू 1826। अब क्या होता है, जो बर्मिस लोग रहते हैं ना, उनका वजह से क्या होता है, इंग्लिश लोगों को डर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश था उनको डर लगना शुरू हो जाता है। उनको लगता है अरे ये इन्होंने तो ऑलरेडी अराकान ले लिया, कसार ले लिया, मणिपुर ले लिया, बंगाल लेने में कितना टाइम लगेगा। बंगाल में तो उस समय ब्रिटिश थे, इसलिए ब्रिटिश को डर लगना शुरू हो गया था। और इसीलिए ब्रिटिश आ गए थे इनसे लड़ने की, ये पहले आके बंगाल, इससे अच्छा इनको असम से हटा दिया जाए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ब्रिटिश और बर्मिस में झगड़ा होता है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार। और ये कब होता है, 1824 टू 1826। अब क्या होता है, एक लास्ट पॉइंट कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, कि द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। ड्यू टू दिस ट्रीटी द बर्मिस हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम असम। असम केम विद इन द एम्बिट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार होता है ब्रिटिश और बर्मिस का बीच में, उसमें कौन जीतता है, ब्रिटिश जीत जाता है, बर्मिस हार जाता है, ठीक है। और वही क्या हुआ, पूरा एपिसोड आपको पता चलेगा कैसे कैसे लड़ाई हुआ दोनों का बीच में, कौन जीता कौन हारा, सब डिटेल्स में कवर होगा। अभी बस आपको इतना जानना है कि ब्रिटिश और बर्मिस का बीच में झगड़ा हुआ, कौन जीता, ब्रिटिश जीत गया और बर्मिस हार गया। और क्योंकि ब्रिटिश जीत गया तो फिर बाद में ट्रीटी साइन हुआ, यांडाबू, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। यांडाबू वहां पे साइन हो गया ट्रीटी ऑफ यांडाबू। वहां पे क्या क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस ट्रीटी का वजह से क्या हुआ, फाइनली बर्मिस को असम छोड़ के जाना पड़ा। और अब कंट्रोल किस, क्योंकि अब ब्रिटिश जीता था तो अब कंट्रोल पूरा असम का हाथ, ये असम का जो पूरा कंट्रोल है किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। और यहाँ ही हमारा क्लास आज का पार्ट 5 भी खत्म होता है। आशा करता आप लोग सब देख रहे हो, आशा कर सब চাই আছা আৰু ক্লাছবিলাক ভাল লাগি আছে। তো তোমালোক কমেণ্ট কৰি থাকিবা কি প্ৰব্লেম হৈছে কি নাই হোৱা, যাতে ময়ো তোমালোকৰ লগত পেজ এটা মিলাই থাকিব পাৰিম, ঠিক আছে। অ'কে, MCQ নোটছ লাহে লাহে যেনেকৈ শেষ হ'ব মই চব দি দিম, ঠিক আছে দিয়া, গুড নাইট।